ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਢ ਜੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਨੇ, ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀज़ नहीं है, लोग तो जानवरों मार के खा जाते हैं अपने फूड ਲਈ। कि अब जो एलोन मास्क साहब की जो ये कंपनी है न्यूरालिंक, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। 2016 में उन्होंने ऐलान किया कि अब कुछ ही सालों में जो है हम ब्रेन में एक चिप लगाएंगे, एक न्यूरो चिप हम डेवलप करेंगे, जिससे जो है जिसको लकवा मार गया है, जो अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, वो भी कंप्यूटर्स का या मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकेगा। बिल्कुल। तब से लेकर के आज तक वो चल फिर नहीं सकते थे। लेकिन फिर 2021 में एक चिप जो स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ऐसा ही एक, ऐसे 2 चिप्स, पहले इनके स्पाइनल कॉर्ड के एक हिस्से में लगाया गया और फिर एक और चिप जो है इनके ब्रेन में लगाया है, जिस वजह से जो है अब वो चल फिर पा रहे हैं। बिल्कुल, वो व्हीलचेयर तो उठ खड़े हुए, हाँ उठ खड़े हुए हैं और तुरंत लग पे बंदा, सीढ़ियाँ भी चढ़े। लेकिन ये पाया गया है उन पेशेंट्स में कि बैटरी ख़त्म होने के बाद भी, जैसे डिवाइस आपने हटा दिया 1 घंटा इस्तेमाल करने के बाद, कुछ महीनों बाद उनमें डिवाइस हटने के बाद भी कुछ बॉडीली फंक्शंस हो रहे हैं। हाँ, पिछले महीने की बात है, मैंने शायद आपके साथ इस बारे में बात भी की थी कि एक सिमुलेशन हो रहा था ड्रोन का। उसमें ड्रोन को कहा गया कि आप जाके उस जगह पे एक टारगेट को उड़ा दीजिए। ड्रोन गया तो उस हिसाब से उसको कमांड किया गया, उसके हिसाब से उसको ट्रेन किया गया है। उसके बाद बीच राह ड्रोन को बोला गया कि अटैक ना करो, अबॉर्ट द मिशन। तो ड्रोन को लगा कि क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है, तो इस टारगेट को उड़ाना हमारे हित में है, तो फिर मैं इसको उड़ा देता हूँ। कोई अगर मुझे रोक रहा है, मैं उसी को उड़ा देता हूँ। तो उसने पलट के जो है ऑपरेटर को ही उड़ा दिया। हालांकि ये सिमुलेशन था, असल जिंदगी में होता तो ये बड़ी खतरनाक बात होती, लेकिन सिमुलेशन में ही पहले ऑपरेटर को उड़ा दिया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। The Harjinder Singh Show। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਪ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਚਿਪਿੰਗ ਇਨ ਹਿਊਮਨਸ। ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਥੀਕਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਢ ਜੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਨੇ, ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਲਈ। ਸੋ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਰਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਇਲੋਨ ਮਸਕ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਚਿਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਿਊਰੋ ਚਿਪ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जी, तो न्यूरो टेक्नोलॉजी अब एक पूरा साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इस पे काफ़ी सालों से काम हो रहा है। मुझे अभी याद आ रहा है बचपन में वर्ल्ड दिस वीक में पहली बार ऐसी एक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा हुआ था कि कोई जो देख नहीं पाता वो कंप्यूटर्स के ज़रिए देख पाएँ, ऐसी एक कोशिश हुई थी। अब वो उस ज़माने में क्या होता था कि पहली एक कोशिश हो रही है तो फिर उसको जो है बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा के कभी कभी दिखाते थे, बताते थे। लेकिन तब से लेकर के आज तक बड़ा फ़र्क आया है कि टेक्नोलॉजी अब 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है कि अब जो एलोन मस्क साहब की जो ये कंपनी है न्यूरालिंक, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। 2016 में उन्होंने ऐलान किया कि अब कुछ ही सालों में जो है हम ब्रेन में एक चिप लगाएंगे, एक न्यूरो चिप हम डेवलप करेंगे जिससे जो है जिसको लकवा मार गया है, जो अपने हाथ पैर नहीं चला सकता, वो भी कंप्यूटर्स का या मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकेगा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अब शुरू तो हो गया, ऐलान उन्होंने कर दिया कि 2020 तक हम लगा देंगे, लेकिन फिर इतना आसान नहीं था, उनको लगा बाद में। तो उनके कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, अब उन्होंने कहा है कि जो है ज़बरदस्ती जो है लोगों को टारगेट्स दिए गए कि भाई आपको जो है इस 3-4 महीने में जो है ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट करना है, जैसे तैसे करना है। तो इसमें एलिगेशन ये लगा है कि तकरीबन 1500 जानवर मारे गए इस रिसर्च के चलते। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी पिछले महीने ही फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की FDA, उन्होंने इसको हरी झंडी दे दी है कि अब आप ह्यूमन ट्रायल्स कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है वैसे, क्योंकि अगर आप ह्यूमन ट्रायल तक बात पहुंच गई है तो इसका मतलब कि जल्द ही आपके वॉलंटियर्स निकल के आएंगे। उसके बाद मैं एक गल तुहानू डिस्कस करनी चाहना भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਰਸਸ ਰਿਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। जी, तभी फिर वो इस तरह की इजाज़त देंगे मैं कर। जी जी, और क्योंकि इसमें प्रेशर ग्रुप्स का भी एक रोल होता है। अच्छा। कि जो पहले जब ये एलिगेशंस आए तब कुछ एथिकल ग्रुप्स हैं मेडिकल फिजिशियंस के, उन लोगों ने फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को बोला कि भाई आप इसको जो है हरी झंडी ना दीजिए, क्योंकि इसमें सीरियस एथिकल इश्यूज हैं, पता नहीं जानवरों के साथ क्या सलूक किया गया है, कि क्या इस ट्रायल के रिजल्ट्स पे हम यकीन कर सकते हैं कि क्या ह्यूमन ट्रायल्स पे हम जा सकते हैं। इसके लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो ये था कॉन्वर्सेशन, ये पिछले साल की बात है। मार्च में इसी साल मार्च में पहला इनका एप्लीकेशन रद्द हो गया था, लेकिन अब मई के आखिर में FDA ने इनको अलाउ कर दिया है। मेरे ख्याल से एक और डेवलपमेंट इसका जिम्मेदार है, वो ये है कि हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट ने ऐसा ही एक चिप, उन लोगों ने इसके बड़े मतलब अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि एक इंसान जो जब 28 साल का, अब वो 40 साल के हो गए हैं, 12 साल पहले जब 28 साल के थे तब उनके साथ एक हादसा हुआ था जिसमें उनका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था। बिल्कुल। तब से लेकर के आज तक वो चल फिर नहीं सकते थे। लेकिन फिर 2021 में एक चिप जो स्विट्ज़रलैंड के साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ऐसा ही एक, ऐसे 2 चिप्स पहले इनके स्पाइनल कॉर्ड के एक हिस्से में लगाया गया और फिर एक और चिप जो है इनके ब्रेन में लगाया है।
जिस वजह से जो है अब वो चल फिर पा रहे हैं। बिल्कुल, वो व्हीलचेयर तो उठ खड़े हुए हाँ, उठ खड़े हुए हैं और तुरंत लग पिया बंदा। सीढ़ियाँ भी चढ़े हैं, लेकिन हाँ उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत नेसेंट टेक्नोलॉजी है, तो फिर बैकपैक लेके घूमना पड़ता है, सर पे एक हेलमेट पहनना पड़ता है, तब जा करके जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत क्रूड फॉर्म है। हाँ, नहीं लेकिन इसमें ये बात भी है कि क्योंकि इनके साथ हादसा 12 साल पहले हुआ था, 12 सालों तक ये चल फिर नहीं सकते थे, अपने बॉडीली फंक्शंस, इनके लिम्ब फंक्शंस नहीं थे, तो 12 सालों में जो है दिमाग भूल जाता है कि ये हरकतें जो हम करते थे अब नहीं कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से ट्रेन करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ बड़ी रिसेंटली, जैसे 12 साल नहीं कि 4-5 साल पहले कोई हादसा हो गया। हाँ, ऐसे 2 केसेस हैं, ऐसे एक मिशेल रोकैटी करके एक और इंसान, तो उनके साथ पिछले साल ऐसा ही चिप लगा उन पे, और अब वो इंडिपेंडेंटली अपना चल फिर सकते हैं उसके जरिए, क्योंकि अभी उनके केस में रिसेंट ही था, काफी 5 साल हुआ था उनको एक्सीडेंट हुए हुए। तो ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा है डेविड मजे करके एक और इंसान, इनके साथ तो और भी अनोखी बात हुई थी। इनका स्पाइनल कॉर्ड ही मतलब वो कट गया था। तो फिर इनके साथ टेक्नोलॉजी, वो चिप जब डला, तो इस हद तक काबिल हो गए कि अब वो एक बच्चे के बाप भी बन गए हैं। तो जितना कम वक्त होता है एक्सीडेंट के बाद ये चिप लगने में, उतना ही ज्यादा आपके रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं, उसकी उम्मीद बढ़ जाती है। इनके केस में अब इनको ट्रेन करना पड़ रहा है। तो अब क्योंकि इतना सक्सेसफुल हो गया है, तो इसीलिए एफडीए को लगा है कि शायद ये ट्रायल पे हम जा सकते हैं कि इसके अब अच्छे एक्सपेरिमेंट्स कि जे स्विट्जरलैंड ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਚਿਪ ਇੰਨਾ ਕਾਰਾਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, तो फिर एलन मस्क ਦਾ क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने बेहतरीन इंजीनियर्स इन्होंने लगाए हैं। अब ये इसमें एक फ़र्क ज़रूर है कि एलन मस्क वाली टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। इस टेक्नोलॉजी में अभी पहले स्टेप में वो चाह रहे हैं कि जिस इंसान के पास अपने हाथ चलाने के फंक्शनिंग ना हो, मतलब वो हाथ नहीं चला सकते, वो मोबाइल फ़ोन और बाद में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकें। कि आप सोचेंगे कि मुझे इंटरनेट पे ये सर्च करना है और फिर वो आपके सामने आ जाएगा कि आपको कुछ हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बैंक के ज़रिए ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आपने ये सोचा और फिर ट्रांजैक्शन हो गई। वो ट्रांजैक्शन जो है मन से आप कंप्यूटर को या मोबाइल फ़ोन को आप चला सकेंगे। ये अल्टीमेटली ब्रेन के जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो कम्युनिकेट होते हैं कंप्यूटर को। तो ये ब्रेन मशीन इंटरफेस कहते हैं ऐसे टेक्नोलॉजीज को। अच्छा, हाथ से नहीं चलेगा, हाँ, पर टेलीफोन ब्रेन तो सीधा ऑर्डर लेगा, हाँ, और कम कर देगा। जी बिल्कुल। तो ये पहला स्टेप है। अब इसके आगे और भी इसके जो है टेक्नोलॉजी के और भी ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से होंगे अचीवमेंट, जो अभी अनलॉक हुए नहीं है लेकिन होंगे। पर वो क्लेम की कर देने भी ਜਿਹੜੇ स्पाइनल कॉर्ड वाले व्हील चेयर स्ट्रक बंदे ने, वो तो उठ के तुर सकणगे। इन्होंने इस पे नहीं काम किया है। जैसे वो स्विट्जरलैंड वाले डॉक्टर्स ने, उनका काम ये है कि उस चिप के जरिए वो, क्योंकि अब स्पाइनल कॉर्ड कट गया, अब वहां से तो सिग्नल जा नहीं सकता, उसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट ब्रेन से उस चिप तक, उन नर्व्स तक कि जिनसे जो है हाथ पैर पाँव के जो है फंक्शनिंग होते हैं, पैर के ज्यादातर पैरालिसिस में तो ये होता है, उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। उनको डायरेक्टली वो कनेक्ट कर दिया है कि अब स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली उस चिप पे आप जा रहे हैं। तो इससे जो है एक, आप कह सकते हैं एक क्वांटम लीप है। हालांकि अभी भी बेसिक है, लेकिन यहां तक आ पाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक बार वो पहला कदम सीढ़ी के पायदान पे पड़ गया, तो उसके बाद ऊपर जाना बड़ा आसान हो जाता है, बड़ी तेजी से। वो पहली सीढ़ी तक पहुंचने में जो है काफी वक्त लगता है। तो अब ये हो गया है। और लेकिन तो जिनके बॉडीली फंक्शंस नहीं हैं, उनके लिए तो बहुत ये फायदेमंद, जैसे कोई एक इंसान बाप भी बन गया है, मतलब वहां तक जो है बात पहुंच गई है, तो ये बहुत इनकरेजिंग है। और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए जो है, और जो पेशेंट्स हैं खास करके, जिनको डॉक्टर्स ने कह दिया है सालों पहले कि भाई आप ऐसी जिंदगी से जो है आप समझौता कर लें कि आप कभी चल फिर नहीं पाएंगे,
उस इंसान में अब ये काबिलियत पैदा हो गई है कि अब वो चल फिर सकता है। हाँ ठीक है, वो एड के जरिए अभी धीरे धीरे जो है, क्योंकि अभी बेसिक लेवल पे क्या हो रहा है कि 1 घंटे से ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, किसको इसको चार्ज करना पड़ता है चिप को, इसकी बैटरी निकल जाती है 1 घंटे या थोड़ा उससे ज़्यादा। लेकिन ये पाया गया है उन पेशेंट्स में कि बैटरी ख़त्म होने के बाद भी, जैसे डिवाइस आपने हटा दिया 1 घंटा इस्तेमाल करने के बाद, कुछ महीनों बाद उनमें डिवाइस हटने के बाद भी कुछ बॉडीली फंक्शंस हो रहे हैं। हाँ, कि मतलब मसल्स में वो एक मसल मेमोरी होता है ना, मसल का अपना एक अलग मेमोरी होता है कि उसको एक चीज़ की आदत पड़ जाती है। अब वो धीरे धीरे जो है वो आदत पैदा हो रही है। तो इस चिप के जरिए जो है ये भी एक फ़ायदा पहुंचा है कि धीरे धीरे शायद दौड़ भी सकेंगे। एक केस में तो वो स्विम भी कर पाए हैं। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है कि क्या मतलब किस डिग्री ऑफ डैमेज के साथ आप डील कर रहे हैं। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਚਿਪ ਹੈ जी ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, हाँ ਉਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? आगे कंप्यूटर भी चला सकेगा ये। ਅੱਛਾ, हाँ कंप्यूटर भी ਉਸੇ चला ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। हाँ वैसे ही बिना कीबोर्ड बिना माउस के जरिए ये कंप्यूटर भी चला सकेगा। कंप्यूटर के जरिए बहुत से काम हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक खतरे की बात है कि जो एथिकल जो साइंटिस्ट हैं ये सारे, इन्होंने ने ये बात कही है कि ये एक किस्म का माइंड कंट्रोल हो सकता है कि ब्रेन को आपने कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया, मतलब कंप्यूटर के जरिए ब्रेन में स्टिमुलेशन पैदा किया जा सकता है। कुछ ऐसे एक्शंस एक इंसान से कराए जा सकते हैं जिसमें शायद उसकी रजामंदी ना हो, लेकिन अगर सिग्नल चला गया तो फिर जो है अपने आप उस हिसाब से वो फंक्शन होगा। कि अगर आपको किसी के साथ फॉर्जरी करना है, कोई गलत ट्रांजैक्शन करना है, कि आपके पैसे अकाउंट के सारे पैसे किसी और के अकाउंट में डालने हैं, वो आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किसी ने उसको हैक करके जो है आपके दिमाग में वो सिग्नल भेज दिया है, अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते, आपके दिमाग से वो चला जाएगा, हैकर रन करेगा इंसान। हाँ बिल्कुल, माइंड हैकिंग ये एक टर्म इस्तेमाल हुआ है कि माइंड हैकिंग किया जा सकता है। फायदा ये भी हो सकता है कि अब जैसे कोई डिप्रेशन का शिकार है, उनको हमेशा जो है, और बहुत सीवियर डिप्रेशन में तो बहुत हैवी मेडिसिन आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। डिसऑर्डर है। हाँ, तो ये शायद मुमकिन होगा कि ऐसे सिग्नल्स पैदा किए जाएं दिमाग में जिससे जो है वो डिप्रेशन वाली जो है वो थॉट्स है वो कम हो जाए। लेकिन क्या इससे इंसान में एग्रेशन भी पैदा हो सकता है? तो हमें अपने जो है ब्रेन, बड़ा अजीब कॉम्प्लेक्स वो एक चीज़ है जिसको साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो क्या एक चीज़ को कंट्रोल करने से दूसरी चीज़ जो है काबू के बाहर हो जाएगी? ये बात भी एक है सोचने लायक। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी बिल्कुल, वो किस तरीके नाल कई बारी काउंटर रिएक्ट कर देंदी। बिल्कुल। अरे अभी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अभी पिछले महीने की बात है, मैंने शायद आपके साथ इस बारे में बात भी की थी जी, कि एक सिमुलेशन हो रहा था ड्रोन का। उसमें ड्रोन को कहा गया कि आप जाके उस जगह पे एक टारगेट को उड़ा दीजिए। ड्रोन गया तो उस हिसाब से उसको कमांड किया गया, उसके हिसाब से उसको ट्रेन किया गया है। उसके बाद बीच राह ड्रोन को बोला गया कि अटैक ना करो, अबॉर्ट द मिशन। तो ड्रोन को लगा कि क्योंकि ये हमारे इंटरेस्ट में है, तो इस टारगेट को उड़ाना हमारे हित में है, तो फिर मैं इसको उड़ा देता हूँ। कोई अगर मुझे रोक रहा है मैं उसी को उड़ा देता हूँ। तो उसने पलट के जो है ऑपरेटर को ही उड़ा दिया। हालांकि ये सिमुलेशन था, असल जिंदगी में होता तो ये बड़ी खतरनाक बात होती, लेकिन सिमुलेशन में ही पहले ऑपरेटर को उड़ा दिया। उसके बाद फिर नया इन्फॉर्मेशन फीड किया गया ड्रोन को कि भाई आप अपने साइड के लोगों को नहीं मार सकते। तो ये नया इन्फॉर्मेशन उसको फीड हुआ। उसके बाद दोबारा से वो सिलसिला चला कि कमांड दिया गया कि भाई जाके उड़ा दो, बीच में रोक दिया गया। अब उसने क्या किया, अब तो अपने लोगों को मार नहीं सकते, नया इन्फॉर्मेशन आ गया, उसने पलट के जो है कम्युनिकेशन टावर को उड़ा दिया कि उस तक ये बात पहुंचे ही ना कि मिशन को अबॉर्ट किया जाए। तो ये अब इसने ये ऑन द मतलब वहां पे जैसे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को ट्रेन करके जो है अपने सिचुएशंस, अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करने की जो है अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करता है। हाँ, तो अब अगर इसको समझ में आ गया कि देखो किसी को उड़ा देना, किसी को ख़त्म कर देना हमारे इंटरेस्ट में है, तब वो किसी भी सूरत में वो कर देगा उसको। तो ये एक बड़ी ख़तरे की बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये एक पहलू जो है, पर वो पहली चीज़ अनडू नहीं की जा सकती।
अब जैसे इस सिचुएशन में क्या हुआ कि उस हिसाब से इसको ट्रेन किया गया, नहीं? अब जैसे चैट जीपीटी के बारे में हमने बात की थी। चैट जीपीटी जब हमने बात की थी तब से लेकर के आज तक उसमें इतना इजाफा हो गया है कि और भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। पहले फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा था, अब कम हो गया है, क्योंकि ये सारे ट्रेनिंग के ज़रिए एआई मॉड्यूल्स चलते हैं कि आप रोज़ाना उसको ट्रेन करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स उसको ट्रेन करते हैं, और दूसरा उस एनवायरनमेंट में रहते हुए वो अपने आप चीज़ों के साथ डील करने के लिए खुद को तो वो तैयार करता रहता है कि अच्छा मेरा ये रिस्पॉन्स बेहतर नहीं था, व्हाट कुड बी अ बेटर रिस्पॉन्स। वो अपने हिसाब से जो अपने रिसोर्स पूल को वो पूरा जो है वो कोशिश करेगा, उसको खंगालेगा, और फिर अपने आप जो है एक बेटर रिस्पॉन्स वो देने की कोशिश करेगा। तो ये है एआई। अब इसको समझाने के लिए दोबारा से उस ड्रोन को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप किसी को नहीं उड़ा सकते, आपको ये कमांड फॉलो करना होगा। तो ऐसे ऑन द ग्राउंड जब आप एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके टीथिंग ट्रबल्स बड़े हैं। गोइंग बैक टू दिस चिप, जी, ਸੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਚਿਪ ਦੀ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? अब तो ह्यूमन ट्रायल्स, क्योंकि अब इजाज़त तो दे दी गई है एफडीए की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि अब कभी तो इसकी शुरुआत होगी। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਦੂਸਰੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਚਿਪ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, जी, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਡ ਲੋਕ ਨੇ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। जी। दूसरे चिप का जो है ये काम है, और 2018 से उस पर बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट सामने आया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी ओपन मार्केट में इसको डाल नहीं सकते, क्योंकि इस पे और भी ज़्यादा ट्रायल्स होना ज़रूरी है और फ़ायदे नुकसान जो भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार ये स्टेज तक हम पहुंच गए तो अगला स्टेज पहुंचने में ज़्यादा शायद टाइम ना लगे। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजीज अफोर्डेबल हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या आम आदमी इनको अफोर्ड कर सकता है। जैसे एलन मस्क साहब ने खुद कहा है कि ऑपरेशन और चिप लगने में $2,000 लगेंगे। अब $2,000 क्या हर कोई इंसान अफोर्ड कर पाएगा, ये एक सवाल है। $2-3,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। हाँ, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसको चार्ज करते रहना, ये बड़ा खर्चीला मामला हो सकता है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਪ। हाँ, नहीं, वो धीरे धीरे जैसे आप एक बार शुरू हो गया ना, आप अगले 5 सालों में ठन साहब देखिएगा कि ये कॉन्वर्सेशन बड़ा अलग होगा हमारा। नहीं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट्स हुए, एक बार वो आ गया जो आजकल हम देख रहे हैं पोस्ट 2000 जो फिनोमिनन है, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में काफ़ी इजाफा हुआ, कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जो 10 साल आपको लगे एक चीज़ को तैयार करने में, उसको पुख्ता करने में आपको 5 साल या शायद उससे भी कम टाइम लगे। तो एक बार ये राह खुल गई तो फिर अब पूरा सुपर हाईवे बन जाएगा ये। तो ऐसी जो है उम्मीद कर रहे हैं रिसर्चर्स। मनीष शर्मा जी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।